الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر، اس کی کروڑوں رحمتیں برکتیں اور اس کا فضل کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر ایک دفعہ پھر قرآن مجید کے لیکچر کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ یہاں پر ہم خالصاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو انتظامیہ ہیں، بھائی عبدالغفار صاحب، بھائی عبدالحمید صاحب، فیاض بھائی، اشرف پرنس اور جتنے بھی دوست احباب یہاں پر موجود ہیں، ان کا بھرپور شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق بخشی ہوں یہاں پر قرآن مجید کا یہ درس قائم کر سکیں۔ تو آج ہمارا لیکچر نمبر 75 ہوگا۔ آج جتنی بھی 3 آیات جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ تینوں آیات جو ہیں وہ والدین کے متعلق ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 جو ہے جو نیچے لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں اور اس کی پھر انشاءاللہ مختصر تشریح بھی دیکھیں گے۔ اس کا ترجمہ لکھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ جی، وَقَضَى کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور فیصلہ کر دیا۔ ربو کا تیرے رب، جب یہاں پر بات اللہ پاک نے کر دی کہ فیصلہ کر دیا تیرے رب نے، اللہ، یہ اللہ جو ہے یہ بیسیکلی ان اور لا، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہیں۔ یہاں پر یہ جو رب کا ہے یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ رب جو ہے اس کے ساتھ ہم نے کا، کی، کما، کم اور کنہ جب لگاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ضمیر حاضر ہوتی ہے۔ ربو کا اس کا مطلب ہوتا ہے تجھے ایک مرد کا رب، ربو کی تجھے ایک عورت کا رب، ربو کما تم دونوں کا رب، ربو کم تم سب مردوں کا رب، اور ربو کنہ اگر ہوتا ہے تم سب عورتوں کا رب۔ تو یہاں پر ہم کیا ہے جی، اور فیصلہ کر دیا ربو کا تیرے رب نے، اللہ کے نا تعبدو تم عبادت کرو۔ یہ بیسیکلی آبادہ جو ہے یہ ہوتا ہے ماضی میں، اس نے عبادت کی، اس نے عبادت کی۔ تعبدو تم عبادت کرو یا کرتے ہو، اور تعبدو جب ہم باوریک لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم عبادت کرو۔ تو جب یہاں پر اللہ ہے پیچھے اس نے اس کو منع کر دیا تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَقَضَى اور فیصلہ کر دیا ربو کا تیرے رب نے، اللہ کے نا
ताबुदू तुम इबादत करो इल्ला सवाए इयाहू सिर्फ और सिर्फ उसी, यानी कि सवाए सिर्फ और सिर्फ उसी के अलावा किसी की इबादत ना करो। अगर यहाँ पर हम ताबुदू है इसको इबादत की बजाय अगर हम बंदगी कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बंदगी से मुराद क्या है? गुलामी इख्तियार कर, कि सिर्फ और सिर्फ उसी की गुलामी इख्तियार करो। बंदगी का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसी की गुलामी इख्तियार करोगे। अबद का मतलब गुलाम होता है। अबद का मतलब क्या होता है? गुलाम। हमने इसको सिर्फ इबादत तक महदूद कर दिया है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, वो सिर्फ अल्लाह के लिए करो। लेकिन जो अबद है उसका मतलब इबादत से कहीं ज्यादा बढ़कर है कि आप क्या करो? गुलामी इख्तियार करो। अब गुलाम क्या करता है कि वो 10/10 सारी की सारी बातें जो है वो अपने मालिक की मानता है, 9/10 बातें नहीं मानता है। क्योंकि अगर हम 9 बातें वो माने और 10वीं बात हमारा गुलाम ना माने तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको अपने घर से मुलाजिम को फारिग कर देंगे। तो इसी तरह से अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कि अगर तुमने मेरी बंदगी इख्तियार करनी है तो पूरी की पूरी मेरी बंदगी इख्तियार करनी है, 10 में से 10 बातें ही आपने मेरी माननी। तो अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? वक़ज़ा, और फैसला कर दिया रब्बुका तेरे रब ने, अल्लाह के ना ताबुदू तुम बंदगी इख्तियार करो इल्ला सवाए इयाहू सिर्फ और सिर्फ उसी। यानी कि अल्लाह पाक ने फैसला कर दिया कि तुमने मेरे सिवा किसी की बंदगी इख्तियार नहीं करनी। अब उस बंदगी में आपकी पर्सनल लाइफ भी आ जाती है, आपकी अपनी जाती जिंदगी भी आ जाती है, आपकी घरेलू जिंदगी भी आ जाती है, आपकी मुआशरती जिंदगी भी आ जाती है और आपकी कौमी जिंदगी भी आ जाती है। कि आपने अगर अपनी जात के ऊपर अप्लाई करना है तो अल्लाह का हुक्म, अगर आपने अपने घर के ऊपर हुक्म जो है वो नाफिज करना है तो अल्लाह का हुक्म, आपने मुआशरे के ऊपर नाफिज करना है तो अल्लाह का हुक्म, और अगर आपने अपने मुल्क की सतह पर नाफिज करना है तो क्या है? अल्लाह का हुक्म। आपने जो है वो अपनी जाती जिंदगी जो है वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारनी है, अपने घर को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना। आपको पता है ना कि हर एक राई है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से आजाद करो। तो वो क्या है कि आपने बंदगी इख्तियार करनी है किसकी? सिर्फ अल्लाह की, सिर्फ और सिर्फ उसी की बंदगी इख्तियार करो। कहाँ पर? अपनी जात पर, अपने घर पर, अपने माशरे पर और अपने मुल्क कौम पर। तो अल्लाह पाक आगे क्या फरमाते हैं? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना, व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ, दोनों वालिदैन यहाँ पर वालिदैन दोनों, माँ भी और बाप भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने पूछा कि ऐ नबी मेरे ऊपर किसका सबसे ज्यादा हक है? तो पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया तुम्हारी माँ का। फिर पूछा, कहा तुम्हारी माँ का। फिर पूछा, कहा तुम्हारी माँ का। फिर पूछा तो कहा तेरे बाप का। तो अल्लाह पाक ने क्या किया? दोनों को इम्पोर्टेंस दी है। अगर जो है वो बाप माँ जो है उसका दर्जा जो है वो इंसान के लिए सबसे ज्यादा रखा है, तो माँ जो है वो उसके ऊपर हाकिम किसको बनाया है? बाप को। ऐसी है जी, बाप को जो है वो क्या किया है? माँ को बाप के ताबे कर दिया है और औलाद को क्या किया है? माँ के ताबे कर दिया। तो सबसे ज्यादा दर्जा जो है वो अल्लाह पाक ने इंसान को, मर्द को अता किया है इस दुनिया के अंदर, इस जो है वो। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अब एहसान का मतलब क्या होता है? ये जो है वो एक होता है नेकी। अब नेकी जो है वो अगर किसी ने एक के साथ नेकी की है तो दूसरा भी उसके साथ उतनी ही नेकी करे, उसको कहते हैं नेकी करना। लेकिन एहसान क्या है? एहसान ये है कि उससे बढ़कर करना, जो बदला है उससे बढ़कर करना। तो मुझे बताएं जरा कि अल्लाह का जो हुक्म है वबिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। हम कर सकते हैं अपने वालिदैन के साथ एहसान, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उससे बढ़कर जो है वो करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि नेकी के बदले में नेकी करने की कोशिश करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, यानी कि कोशिश करो कि उनकी नेकी से बढ़कर नेकी करो। फिर अल्लाह पाक आगे क्या फरमाते हैं? इम्मा, अगर
इम्मा का मतलब है जी अगर, या ब्लुगना, अगर वो दोनों पहुंचे, या ब्लुगना, ये बालागा जो है ये इससे लफ्ज निकला है। बालागा का मतलब होता है पहुंचाना। बालागा का मतलब क्या होता है जी? पहुंचाना। तो क्या मतलब इसका हुआ जी? या ब्लुगना या ब्लुगना, अगर वो दोनों पहुंचे इंदा का तुझ तक, इंदा का तेरे पास, यानी कि इंदा का मतलब होता है पास और का है उसका मतलब होता है तेरे पास। अगर वो दोनों पहुंचे तेरे पास, अल किबर जी, किबारा, अगर वो दोनों तेरे पास पहुंचे बड़ी उम्र में। किबरा का मतलब क्या है जी? बढ़ापे की उम्र में, बड़े होकर पहुंचे। तो तुमने फिर क्या करना है? इन दुहुमा, यानी कि दोनों में से एक, इन दुहुमा दोनों में से एक। ये जो वो ज़मीर हमारे पास है वो दो के लिए इस्तेमाल की जाती है, हु, हा, हुमा, हुम और हुन्ना। आहद का मतलब क्या होता है? एक, और इन दुहुमा दोनों में से एक, दोनों में से एक, यानी कि अगर दोनों में से एक भी तेरे पास बढ़ापे की उम्र को पहुंचे तो तुमने क्या करना है? ओ या, ओ का मतलब होता है या, और उसके बाद है किलाहुमा, किलाहुमा और दोनों, या दोनों, यानी कि अगर बुढ़ापे की उम्र में एक पहुंचे या बुढ़ापे की उम्र में तुम्हारे पास दोनों पहुंचे तो फिर क्या करना है? फला पसना तकुल तू कह, तकुल पसना तू कह लाहुमा, उन दोनों के लिए या उन दोनों को उफ के। तुमने उन दोनों को, अगर दोनों में से एक भी तुम्हारे पास पहुंचे या दोनों तुम्हारे पास पहुंचे, फला बस ना तकुल तू कह लाहुमा, उन दोनों के लिए उफ। तुम दोनों में से, तुम्हारे पास अगर एक पहुंचे बढ़ापे की उम्र को या दोनों पहुंचे बढ़ापे की उम्र को तो तुमने उनसे उफ तक नहीं कहना। अब जो है वो जब हमारे यहाँ पर मुआशरे में क्या है कि जब माँ बाप में से कोई एक भी जो है वो बूढ़ा आपके पास आ जाता है तो वो हमारे पास ये क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है। ऐसे ही है ना, और उसकी खांसने की आवाज, उसके जो है वो चलने फिरने का जो है वो बोझ, वो सारे का सारा क्या होता है? जो बहुएं हैं वो माशाल्लाह से आजकल जो है वो इस तरह से है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे अपने जो मामलात हैं वो इस तरह से हैं कि हमने कभी 2-2 दिन 4-4 दिन माँ बाप के कमरे में जाकर कोई पूछे ही नहीं हो कि आप जो है वो किस साल में है। तो अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कि तुमने उनसे उफ तक नहीं कहनी। अगर वो तुमसे कोई बात कहें, तुमसे कोई मुतालबा करें, किसी भी किस्म की तुमसे बात करेंगे, तुमने क्या करना है? उनसे उफ तक भी नहीं कहना। फिर अल्लाह पाक आगे क्या फरमाते हैं? वला तनहरुमा, वला और ना तनहरुमा, वला तनहरुमा और ना तनहर तू झिड़क। जी, झिड़क का मतलब क्या होता है? यहाँ पर झिड़कना है, लेकिन नहर का मतलब क्या होता है? अलग करना। नहर का मतलब क्या होता है? जैसे दरिया होता है ना, और दरिया में से नहर निकाली जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? अलग करना। यहाँ पर सिर्फ झिड़कना नहीं है, वला तनहरुमा और ना तू उनको अपने से अलग कर। जी क्या करें? जी, वला तनहरुमा और ना तू झिड़क या उनको अलग कर, ना तू अलग कर उन्हें, उन दोनों को। जी, वला तनहरुमा और ना तू अलग कर उन दोनों को। कुल लाहुमा, कुल कह लाहुमा उन दोनों के लिए कौलन करीमा। जी, कौलन बात और करीमा इज्जत के साथ, तकरीम के साथ। यानी कि अगर आपने उनसे बात करनी है तो किस तरीके से करनी है? इज्जत के साथ बात करनी है। तो हम क्या कहते हैं? वो एक मिसाल है ना छोटी सी, वो माँ ने एक दफा पूछे बच्चे से कि ये क्या काम है, तो उसने एक दफा अच्छा माँ जी ऐसे है, दूसरी दफा उसने पूछा, उसने क्या ऐसे है, तीसरी दफा पूछा तो क्या कहा? अम्मा तेरे सुनया नहीं जाता। ऐसे कहते हैं ना कि माँ जी अभी तो मैंने आपको बताया है। तो कहती माँ कहती है कि तुमने इसी जगह पे बैठे हुए थे तो तुमने जो मुझसे कहा माँ ये क्या है? कौवा है। मैंने कहा ये कौवा है। फिर पूछा ये क्या है? ये कौवा है। तुमने 100 दफा पूछा था तो मैंने 100 दफा प्यार से तेरा माथा चूम के बताया था ये
تو تو نے دوسری تیسری دفعہ جو ہے وہ میں نے پوچھا تو تو نے کیا کہہ دیا کہ ماں جی آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو یہاں پر کیا اللہ پاک فرماتے ہیں کل کہو لاہما ان دونوں کے لیے قولن کریما. ہاں جی عزت کے ساتھ بات کرو ان کے ساتھ. تو یہاں پر دوبارہ سے دیکھ لیجی ساری آیت کا ترجمہ ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. وقضا اور فیصلہ کر دیا ربو کا تیرے رب نے اللہ تعبدو کہ نہ تم عبادت کرو نہ تم بندگی اختیار کرو الا یاہو سوائے اس کے وبالوالدین احسان اور انسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اما اگر یبلغنا اور اگر وہ پہنچے تم دونوں وہ دونوں انتقا تیرے پاس الکبرا بڑی عمر کے ہو کر احدہما ان دونوں میں سے ایک او کلاہما یا دونوں فلا تقل پس نہ تو کہہ لاہما ان دونوں کو اف اف تک ولا اور نہ تنہرہما اور نہ تو ان کو الگ کر اپنے سے نہ تو ان کو جھڑک. پھر اس کے بعد کل لاہما کل کہہ لاہما ان دونوں کے لیے قولن کریما عزت والی بات تکریم والی بات احترام والی بات. اس کے بعد ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے وہ 24 ہے جس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں واقفز اور جھکا جی جھکا لاہما ان دونوں کے لیے جناح اپنا پہلو جھکا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ان سے اپنی نظر کو بھی نیچا رکھنا ہے اور اپنی گردن کو بھی نیچا رکھنا ہے. تو اور ہم کیا کرتے ہیں ہم تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. اچھا جی اس کے بعد جناح الذل جی ذلت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی ہے. پہلو عاجزی کے ساتھ واقفز اور جھکا لاہما ان دونوں کے لیے جناح پہلو الذلی عاجزی کے ساتھ من الرحمہ رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ. یعنی کہ آپ نے پہلو کو کیا کرو آپ نے جھکا لینا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے. پھر اس کے بعد کیا ہے وقل اور کہہ دیجئے اور کہو رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وقل اور کہو ربی اے میرے رب جی رب ارحمہما. یہاں پر جو ہے وہ بیسیکلی لفظ کیا ہے رحم اور اس کے بعد کیا ہے ہما. رب ارحم اے میرے رب رحم کر ہما ان دونوں پر. کما کا مطلب ہے جیسے. پھر اس کے بعد کیا ہے رب یعنی جیسے مجھے پالا. رب یعنی پرورش کی میری یعنی کہ